جان کا سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ دوستو، پاکستان میں مختلف موبائل فون کمپنیز اور ڈسٹریبیوٹرز نے اپنے ایم ڈیز ڈیلرز کو لے جانے کے لیے غیر ملکی دورے کی تفصیلات جاری کر دی تھیں کہ وہ کب لے کے جائیں گے۔ ان میں سے بہت سو کا جو کمپنی اور ڈسٹریبیوٹرز کے دیے ہوئے ٹائم ہے وہ گزر چکے۔ گزشتہ مہینے جو گزر چکا ہے اسے آپ سمجھ لیں کہ وہ پہلا مہینہ اس سال کا پہلا مہینہ جو گزر چکا ہے، اب دوسرا مہینہ فروری چالو ہو چکا ہے۔ دسمبر میں بہت سارے لوگ لے کے جانے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ کچھ تفصیلات جب اب اطلاع کے مطابق جو اب دی جا رہی ہیں، جس کی تیاری تقریباً مکمل کرنے کی طرف جا رہی ہے، ان میں آج آپ کو میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ کو ڈالر کی سچویشن بھی بتاؤں گا کہ ڈالر کس مقام پر جا رہا ہے، اور اسی طرح کچھ ڈیلز ہیں ان کے متعلق بھی آگاہی دوں گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپ اسٹوری کی طرف، کون کہاں لے کے جا رہا ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئیٹیل نے گزشتہ سال اپنے ڈیلرز کو غیر ملکی دورے کرانے کا اعلان کیا تھا، جس میں تھائی لینڈ اور ترکی دو ملک شامل تھے۔ ان میں سے علیحدہ علیحدہ ڈیلز تھیں، لیکن کچھ مصروفیات، کچھ حالات کے تحت وہ آگے ڈیٹ بڑھ گئی۔ اب اطلاع یہ گردش کر رہی ہے کہ آئیٹیل شاید ابھی تک پاسپورٹ تو تفصیلات انہوں نے پاسپورٹ تو کہا گیا تھا کہ لے لیے جائیں گے، لیکن تاحال ابھی تک نہیں لیے گئے، اور اطلاع یہ ہے کہ اسی مہینے وہ ترکی یا تھائی لینڈ کا فیصلہ کر کے ڈیلرز کو لے کر جائیں گے، اپنے جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ڈیلز کے نتیجے میں جو منتخب ڈیلرز ہیں ان کو سلیکٹڈ ڈیلرز کو لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک جو ڈی کوڈ ہے، ابھرتا ہوا موبائل ادارہ ہے، جس نے گزشتہ سال اپنی لانچنگ کہہ لیں آخر میں کی تھی، اس سے پہلے وہ آ گیا، ابھی اس کو سال مکمل نہیں ہوا، لیکن اس نے اپنے ڈیلرز کو منتخب کر لیا، اور یہ مارچ کے مہینے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ دورہ باکو کرائیں گے۔ یہ پہلا دورہ ہوگا ڈی کوڈ کا، جو وہ غیر ملکی دورے پہ لے کے جائیں گے۔ لاہور میں انہوں نے جو لانچنگ ایونٹ منعقد کیا تھا موبائل ڈیلرز جو سلیکٹڈ تھے ان کو مدعو کر کے، وہ پاکستان کی کیا غیر ملکی بھی برانڈ سے بہتر اگر نہیں کہہ سکتے تو کم نہ تھا۔ بہت اچھا پروگرام کیا انہوں نے، اور ڈی کوڈ والے اس کے لیے بڑے جو یعنی داد کے مستحق ہیں۔ اسی طرح انفینکس اپنے ڈیل کے نتیجے میں اپنے ڈیلرز کو لے کر باکو جا رہا ہے، انفینکس بھی، اور اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی مارچ کے مہینے میں نہیں، اگلے مہینے میں دورہ باکو لے کر جا رہا ہے۔ سلیکٹڈ ممبرز ہیں جنہوں نے ڈیل لی تھی، پاکستان بھر کے ٹاپ ڈیلرز ہوں گے۔ یقینی طور پہ انفینکس سے بڑا کام کیا ہے لوگوں نے، تو وہ غیر ملکی دورہ کرا رہا ہے انفینکس۔ گزشتہ سال انفینکس کا جو دورہ مالدیپ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور ڈیلرز مدعو تھے، اسی طرح ان کے ڈسٹریبیوٹرز بھی انفینکس کے سب مدعو کیے گئے تھے۔ اب انفینکس کا دورہ یہ جو ہے وہ امیدیں یہ ہیں ڈیلرز کی کہ یہ ایک لگژری دورہ ہوگا۔ یہ یقینی طور پہ انفینکس بڑا ادارہ ہے، اور اس میں بڑی جو ہے نا لگژری ہونے کی توقع کیا، یقینی طور پہ لگژری دورہ ہوگا یہ، اور یہ دورہ 4 سے 5 دن کے لیے ہوگا۔ اس میں جو ہے وہ ڈیلرز کو مختلف پاکستانی انڈین ریسٹورانٹ میں کھانے، اعلیٰ درجے میں کے ہوٹل میں قیام اور تفریح مقامات کی سیر شامل ہے۔ تو دیکھیے انفینکس کا دورہ بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے ساتھ ایک آپ کو اور
बड़ी स्टोरी देने वाला हूँ। वो है एक पाकिस्तान का मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा सिकोटेल। सिकोटेल, जिसको आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान में तेज़ी से ग्रोथ करने वाला इदारा है, जो इब्तदाई दिनों से आज तक तेज़ी से तरक्की की तरफ गामज़न है। और कई डिस्ट्रीब्यूशनों के साथ साथ आपको ये पता है कि कामयाबी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि यहाँ पर किसको कितना किस ब्रांड से देना है ये तो एक अलहदा मसला है, लेकिन सिकोटेल ने अपने एमडीज़ को हमेशा एक सिस्टम के तहत चलाया है। और अब ये सिकोटेल एक नया, यानी यूरोप में एक नया मुल्क की तरफ इत्तला ये वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को वो लेकर जा रहा है। सिकोटेल ने ये फैसला किया है कि उनके साथ जो टॉप सेल्स डीलर्स, जो टॉप डीलर्स हैं पाकिस्तान में, उनके साथ सिकोटेल एक दौरा करेगा। सिकोटेल की जानिब से होगा। सिकोटेल ये दौरा करा रहा है और ये लग्जरी दौरा होगा और यूरोप में होगा, और उसकी तैयारी के लिए काम शुरू कर दिया है उस्मान सुल्तान और उनकी टीम ने, जो सीईओ हैं। अब ये देखना है कि इस दौरे का ऐलान किस दिन किया जाता है, लेकिन मतवक्को है कि इसी माह इस दौरे का ऐलान कर दिया जाएगा, चंद दिन बाद, एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद। और उसके लिए बाज़ाब्ता जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो तलब कर लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि जो टीम मार्च के महीने में जो लोग दौरा करा रहे हैं उनसे पहले ये दौरा करा दिया जाए। और इसमें पाकिस्तान के जो डीलर्स हैं, एमडीज़ है, उसकी क्रीम शिरकत करेगी। क्रीम का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान भर के बहुत टॉप कैटेगरी, टॉप सेलर्स हैं, वो शिरकत करेंगे इसमें। तो देखिए, कुर्राए फ़ाल, उसके लिए सिस्टम शुरू कर दिया गया है। कुर्राए फ़ाल किसके नाम निकलता है ये नाचीज़ तो आपको बताएगा, साथ साथ कि कितने लोग जा रहे हैं ये बात की बात है। लेकिन सिकोटेल जो अपने जिनको मुंतखब करेगा उन्हें भी आगाह करेगा। तो सिकोटेल का भी ये गैर मुल्की बड़ा पहला दौरा होगा और लग्जरी दौरा है ये, और तवक्कुआत जो लोग करेंगे उससे बढ़ के दौरा कराएंगे ये उस्मान सुल्तान और उनकी टीम। तो देखिए, वेट एंड सी। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में बदकिस्मती या खुशकिस्मती से सारा डिपेंड जो है ना वो डॉलर्स के ऊपर चलता है। गैर मुल्की करेंसी बहुत सारी यहाँ काम करती है। गैर मुल्की करेंसी जो है डॉलर की बुनियादों पर यहाँ चलती है। अक्सर लोग, अब तो जदीद दौर आ गया है, लोग अपनी जगह बेचते हैं या रिश्वत में भी आजकल डॉलर ही तलब करते हैं। ये इत्तला है। इसके अलावा जो रेट ऊपर की तरफ डॉलर के जा रहे थे उसकी नीची उड़ान शुरू हो चुकी है और तेज़ी से अब नीचे की तरफ जा रहा है। 174 तक पहुंच गया है। इत्तला के मुताबिक 170 रुपये तक जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को इत्तलात हैं माशी माहिरीन की, वो ये कहते हैं 170 रुपये से भी नीचे जाने के इम्कान है इसके। तो डॉलर्स में जो है हुंडी हवाले के रेट भी कम हो गए हैं। हवाले के रेट, उसकी वजह यह है कि हवाले में, यानी धर्म के हवाले के हिसाब से अगर देखा जाए, जो इत्तला गर्दिश कर रही हैं, सही या गलत ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि 2 रुपये गिर चुके हैं, उम्मीद है और मज़ीद भी नीचे जाएंगे। इससे बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है लोगों को। अब बहरहाल करेंसी के जो मामलात हैं डॉलर्स के, वो अपनी जगह खड़े हैं और डॉलर्स जो है वो ऊपर की तरफ जो चल रहा था, जो इत्तला थी कि 200 रुपये का हो जाएगा और 190 का हो जाएगा, फ़िलहाल तो ये नीचे जाएगा। अच्छा, ये भी आपको खबर देता चलूँ इसी के साथ, ये सारे रेट नीचे जाने का बहुत सारा उनसर उसमें शामिल है, जिसमें 1 अरब डॉलर से ज़ायद की अदायगी IMF की जानिब से है। उसके अलावा इत्तला ये भी हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भी दे दी हैं। इसके अलावा 3 अरब डॉलर मुआहिदा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए में
चीन के दौरे पे, तो चाइना से भी मुआहिदा हो जाएगा इंशाल्लाह, और $1 अरब रूस से और $1 अरब और एक मुल्क से हासिल हो जाएंगे। तो मतलब $6 अरब फौरी तौर पे मिल जाएंगे, जो पाकिस्तान को अदायगी करनी थी इस साल की, यानी गुज़िश्ता साल की, इस साल में, तो उसकी पेमेंट तकरीबन तैयार है। तो देखना ये है कि ये आपको इसी में ख़बर देता चलूँ कि ये अदायगी नीचे और ऊपर तो होती रहती है, लेकिन रेट 170 से नीचे जाएंगे डॉलर के, वो अपनी जगह है, लेकिन उम्मीद ये है कि मार्च के महीने में ये फिर शूट करेगा, इसमें सट्टेबाजी का उनसर शामिल फिर हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे जो इदारे काम कर रहे हैं उनमें एक डी कोड है, उन्होंने अपनी एक स्कीम का ऐलान किया है जिसमें 8 पीस से लेके 90 पीस तक चैम्पियंस सेल्स जिसका नाम दिया है उन्होंने, मुख्तलिफ उसमें इनामात रखे हैं, यानी उसमें नॉन स्टिक बर्तन हैं, कई चीज़ें उसमें, जूसर ब्लेंडर है, उसके अलावा एलईडी है बड़ी, उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो है 125 होंडा मोटरसाइकिल। तो ज़्यादा सेल कीजिए, ये इदारा तेज़ी से अपना मुकाम बना रहा है। डी कोड इसमें 8 पीस से लेके 90 पीस तक की सेल है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस सेल में आपको आम के आम और गुठलियों के दाम में जो बेनिफिट आपको मिलना है वो तो अपनी जगह है। जब सेल करेंगे आप तो ये एक्स्ट्रा मुनाफा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आपको मिल सकेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।